कृपया सभी लोग गलियारे में बीच में न खड़े हों, स्थान पर अपने खड़े हो जाएं। Which means knowledge. Hence, Ayurveda is the knowledge of life. It incorporates with all aspects of life, whether psychological, physical, spiritual, or social. This means that Ayurveda is based on the ideas that any disease is caused due to the imbalance or stress in a person's consciousness. Ayurveda provides certain lifestyle interventions and natural therapies to maintain the balance between body, mind, soul, and environment. When the system is so beautiful, it do have a great importance in our daily life. It is so because Ayurveda not only lays stress on how to cure a diseased person, but also it lays stress on how to maintain the health of a healthy person. It do so by defining a lifestyle for a person to carry out in his day-to-day life, since Ayurveda is itself a lifestyle. It helps in maintaining the health and cure diseases via help of many exercises and therapies like yoga, herbs, rasayanas, etc. Ayurveda, according to it, a person's lifestyle should include a proper diet with proper nourishment, proper amount of exercises, as well as a proper amount of sleep of about 8 hours. According to the ideas and principles of Ayurveda, a person should wake up early morning around 4 to 5 o'clock, do some exercises and yoga with an empty stomach, then have a bath and have a breakfast full of nutrition and so on, and then carry out their daily life routine. According to the Ayurveda, a person's breakfast should be like a king, lunch should be like a minister, and dinner should be like a poor. Our diet should be maintained and it should be at a proper time. But then also, if any disease is still caused, then we can treat it by help of Ayurvedic medicines that are present in our homes, kitchens, in our gardens, like turmeric for infection, allergies, swelling, tulsi for sore throat, ginger for cough, giloy for fever, etc. At last, I would like to say that to have a healthy and a happy life, we should start using Ayurveda in our daily life. With this, thank you and have a great day ahead. मैं आयुषी सिन्हा कक्षा 12 की छात्रा आज आप सभी के समक्ष अपने विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। हम सभी 4 वेदों से तो पूर्णतः परिचित हैं, किंतु आज मैं आप सभी के समक्ष उस 5वें वेद का ज्ञान लेकर प्रस्तुत हूँ जिसे हम सभी आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी अद्भुत चिकित्सा प्रणाली है जो हमें निरोग रखने में हमारी सहायक होती है, और अगर गलती से हम बीमार पड़ भी जाते हैं तो हमारा शरीर इतना ज्यादा सशक्त होता है कि हम स्वयं ही उससे लड़ सकते हैं। भारतीय भोजन में तो आयुर्वेद कितनी अंदर तक आ सकता है, ये हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम इससे इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं। सुबह उठकर गर्म पानी पीने से लेकर के रात में मिलने वाले हल्दी वाले दूध से लेकर के हमारे दाल में पड़ने वाले घी से लेकर के पुदीने की चटनी तक सब कुछ तो आयुर्वेद ही है। और आप सभी को जान के बहुत अच्छा लगेगा कि इसी आयुर्वेदिक भोजन के माध्यम से हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने का
ताकत भी मिलती है। जैसे कि हम सभी के भोजन में हल्दी तो बहुत ही आम चीज है और हल्दी हमारे शरीर को इतना सशक्त बना देती है कि अगर कैंसर के सेल्स भी हमारी बॉडी में आते हैं तो हम उससे लड़ सकते हैं। और एक और चीज हम सभी के भोजन में धनिया तो बहुत ही ज्यादा आम चीज है और हम सभी को जान के खुशी होगी कि हमारी किडनियों को सशक्त करने में धनिया एक अत्यंत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी। कुछ दिनों पहले मैं बीमार पड़ी थी, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं मैंने एक एलोपैथी डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे दवाइयों के साथ साथ कुछ चीजें भी बताई थी करने के लिए, जैसे गर्म पानी के गरारे और पैरों और हाथों में गर्म तेल की मालिश। और हम सभी जानते हैं कि ये सभी चीजें आयुर्वेद की ही देन है। और कहना चाहूंगी कि विश्व स्वास्थ्य संस्था अर्थात WHO के अनुसार भी एक व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ तभी होता है जब वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आयुर्वेद के पास एक अत्यंत अच्छा उपाय है जिसे हम सभी योग के माध्यम से जानते हैं। आप सभी जानते होंगे कि योग वही अद्भुत शस्त्र है जिसके माध्यम से हमने विश्व भर में कोरोना काल में अपने भारत के नाम का डंका बजवाया था। और यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों से मेरा ये अनुरोध है कि कृपया योग को अपने जीवन में इस प्रकार उतार लें कि भारत की जो युवा शक्ति है वो इतनी ज्यादा शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त हो कि हमारे देश का नाम और आगे बढ़े। अंततः मैं अपनी वाणी को विराम कुछ लाइनों के माध्यम से देना चाहूंगी। आयु बढ़ाने का जो वेद है, जिसमें मन को संयम में रखने का संकेत है, भारत के जन जन में समाया है जो विश्व को दी गई भारत की यह अद्भुत भेंट है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विशेषता यही है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आयुर्वेद से संबंधित कुछ दोहे मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण को मेरा प्रणाम। मैं लक्ष्मी मिश्रा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जसरा प्रयागराज परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दैनिक जीवन में आयुर्वेद है उपयोगी जो रखता है हमें हमेशा निरोगी। भारत एक ऐसा देश है जो विकी आविष्कारों के कारण विश्व प्रसिद्ध देश है। भारत ने समय समय पर कई आविष्कार किए और भारत को आविष्कारों के जननी के रूप में जाना जाने लगा। ऐसा ही एक प्रसिद्ध आविष्कार आयुर्वेद है। वर्तमान समय में हर व्यक्ति स्वस्थ रहने की कल्पना करता है। आयुर्वेद एक पारंपरिक चिकित्सा की प्रणाली है जो कि भारत में विकसित हुई है। आयुर्वेद में निहित शब्द आयु का अर्थ है उम्र और वेद का अर्थ है उपाय। आयुर्वेद अगर विस्तृत रूप से कहूं तो आयुर्वेद एक ऐसा उपाय है जो मनुष्य को स्वस्थ जीवन प्राप्त करता है। वर्तमान में जन जन का यही नारा है, आयुर्वेद को दैनिक जीवन में अपनाना है। आयुर्वेद हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्व रखता है। जब हम प्रकृति के समीप रहकर प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं तो उसमें व्याप्त सभी आयुर्वेद हमारे शरीर में शक्ति का संचालन करते हैं। आयुर्वेद हमें बताता है कि कैसे गरिमा के साथ उम्र बढ़ाई जाए, क्योंकि आयुर्वेद शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका पर जोर देता है। आयुर्वेद हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्व है। आयुर्वेद कहता है कि सर्वप्रथम हमें सुबह जल्दी उठकर हवा में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। साथ ही ताजे मौसमी फलों व जैविक सब्जियों को अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। सब कृत्य हमें स्वस्थ रहने में सहयोग करते। उदाहरण के तौर पर देखें तो कोरोना काल, जब दुनिया में सभी उपचार समाप्त हो गए तो आयुर्वेद ने ही मनुष्य को जीवन दान प्राप्त किया। आयुर्वेद कहता है कि हमें भोर में उठना चाहिए। लगभग 4 से 5 बजे का समय दिन का सबसे ताजा और शुद्धमय समय है। आयुर्वेद कहता है कि आधा चम्मच स्थिर पानी में 1 चम्मच अच्छी गुणवत्ता वाले शहद के साथ हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अच्छी नींद लेना जिससे कि हमारी आंतरिक कोशिकाओं की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करे। पर्याप्त दिन में पानी पीना। आयुर्वेद कहता है सुबह हमें तेल से मालिश करना चाहिए जिससे कि हमारे ऊतकों का सूखना बंद हो जाए और हमारे शरीर में शक्ति का संचालन हो। औषधि गुणों से भरपूर तुलसी का सेवन करना चाहिए, साथ में काढ़ा का भी सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि रोज सुबह हमें एलोवेरा का जूस पीने से व्यक्ति का मोटापा नियंत्रित रहता है, साथ ही गठिया रोग, कमर दर्द आदि रोग दूर हो जाते हैं और व्यक्ति की स्किन पर ग्लो आता है। आयुर्वेद कहता है कि हमें चोकर युक्त रोटी और दलिया का सेवन करना चाहिए, साथ ही मीठे चीनी की जगह गुड़ और शहद का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि हर सुबह शाम नाभि में 2 बूंद तेल डालने से कमर दर्द, गठिया रोग आदि रोग दूर हो जाते हैं। हल्दी और दूध का सेवन करने से खांसी, सर्दी, जुकाम, इन्फेक्शन आदि प्रतिरोधक क्षमता को हम बनाने में हमारा सहयोग करते हैं।
आयुर्वेद कहता है कि दही और जैतून का तेल लगाने से व्यक्ति के चेहरे पर चमक आता है। आयुर्वेद कहता है कि 1 चम्मच भुना हुआ जीरा 1 चम्मच धागे वाली मिश्री का प्रयोग करने से व्यक्ति के बवासीर रोग में राहत मिलती है। आयुर्वेद कहते हैं कि मेथी दाना और सौंफ का प्रयोग करने से व्यक्ति का कमर दर्द, रोग, पेट दर्द, गठिया रोग आदि दूर हो जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि 1 चम्मच आंवला पाउडर और 1 चम्मच चाय पत्ती का ओके बेटा, थैंक यू। आप लोग उत्साहवर्धन करना भूल जा रहे हैं। समय के अभाव में 2 कल कोनी की अपेक्षा रहेगी हर बच्चे। प्राचीन है किंतु आज भी विश्वास है, प्राचीन है किंतु आज भी विश्वास है। आयुर्वेद चिकित्सा का मर्म है, वेदों का भी वेद आयुर्वेद है। धन्यवाद। हृदय रोग, खांसी और आओ करे बदनाम, 2 अनार खाएं सदा, बनते बिगड़े काम। चैत्र माह में नीम की पत्ती हर दिन खावे, जो डेंगू मलेरिया 12 मील भगावे। पानी करके गुनगुना मेथी दे भिगाए, सुबह जमाकर नीर पी रक्तचाप सुधराए। धनिया की पत्ती मसल बूंद नैन में डाल, दुखती अखियां ठीक हो पल लागे 2-4। ठंड लगे जब आपको सर्दी से बेहाल, ठंड लगे जब आपको सर्दी से बेहाल, नींबू मधु में डालकर, नींबू मधु के साथ में अदरक पिए उबाल। धन्यवाद। तो मैं पब्लिक स्पीकिंग वगैरह करता था, तो एक तो ये होता है कि पहले जब जाओगे माइक के पास तो माइक यहाँ दिखने लगता है, मतलब आंखों के ठीक सामने। फिर आदमी ऊपर देखने लगता है, फिर सामने वाले को देख के और वो समझ में नहीं आता है कि क्या याद है। फिर अलग अलग टैक्टिक्स होते हैं, टाइम का पता नहीं चलता, टाइम मतलब धीरे हो जाता है अचानक से, मतलब जनरली 2 मिनट भी लगता है कि खत्म ही नहीं हो रहा। और फिर आदमी पॉइंट, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं या तो नेचुरल स्पीकर्स रहे, जैसे हम लोग अभी बात करें तो मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है बोलने के लिए, ठीक है, तो मैं उतना कॉन्शियस नहीं हूँ, पर आप कोई पर्पस के साथ आते हो तो फिर मैं फर्स्ट लाइन भूल गया और मैं 4th लाइन पे आ गया, फिर मैं वापस 2nd लाइन बोलना होता है, तो उसमें आदमी थोड़ा सा फंबल करता है। बट ऑन अ ओवरऑल नोट पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होती है, आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस देती है। जैसे बोलते तो सब लोग हैं, आपस में ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग बातें नहीं करते हैं। जब दोस्तों के बीच में रहते हो तो आप लोग भी हीरो, सबको लगता होगा कि मैं ही हूँ हीरो, ठीक है। बट सेम जब आप स्टेज पे आते हो तो स्टेज कॉन्शियसनेस एक अलग चीज होती है। एंड सिमिलर चीज जब आप कहीं पे इंटरव्यू में जाते हो या वाइवा में, जब हम लोग 12th का वाइवा देते थे तो आता सब कुछ था, रिटर्न में 80 मारते थे, वहां जाकर के 2 सवाल नहीं बनता था, मतलब मीथेन का फॉर्मूला नहीं बता पाए। तो बेसिकली वो कॉन्शियसनेस जग जाती है, तो आदमी के दिमाग से जैसे कभी कभार नहीं होता कि आता है बस याद नहीं आ रहा, तो इसका एक बहुत अच्छा रेलेवेंस है, एक अच्छी प्रैक्टिस है। डिपेंड करता है आदमी के एक्सपोजर के ऊपर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर स्क्रिप्ट। जैसे मैं सुन रहा था तो हम लोग तो रट लेते थे पूरा, कि एकदम रट के इतना पिच कि कहाँ पे धीरे बोलना है, कहाँ पे आवाज ऊपर करना है, सब सेट। मतलब कोई भी बता सकता है कि भैया ये तो रट्टू तो समझ रहे हो ना, उस टाइप से हम लोग आते थे। बट नेक्स्ट में होता ये है कि आप अगर नेचुरल स्पीकर हो, जैसे कई लोगों में दिखेगा बहुत कामली बोलते हैं, ठीक है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब जो बोलते हैं कि एक अलग साइड से ही बोलने में लगे कि अच्छा ये गैप भी आता है, उसमें वो सोच लेते होंगे। तो सिमिलर वे में हम भी ऐसा कर सकते हैं, अगर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड वे में ना बोले कि नेक्स्ट लाइन क्या होगी, और एक नॉर्मल टोन में जैसे आप लोगों के साथ बात कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। एक पब्लिक स्पीकिंग का एक और प्रॉब्लम होता है, हम पब्लिक स्पीकिंग को एक इस प्रकार से लेते हैं कि हमें जाकर के लोगों के सामने भाषण देना है। नहीं, दिस इज रॉन्ग। आप भले ही यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग के लिए आए हो, बाकी लोग आपको सुनने के लिए आए, ठीक है, तो कुछ भी बोलो। अगर ऐसा ही था तो फिर अपने शीशे के सामने बोल सकते थे। आपको लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनका अटेंशन अपने आप। अगर आप उनके इन्वॉल्वमेंट ले पाते हो तो वो आदमी आपको अच्छा पब्लिक स्पीकर समझेगा। अदरवाइज आप क्या कंटेंट बोलते हो, किस प्रकार से बोलते हो, जजेस माइट लिसन। असली असेसमेंट सामने बैठा हुआ आदमी
करता है। ठीक है, तो एक चीज है। बाकी अच्छा एक टॉपिक है। जनरली हम लोग, मैं ही आ रहा था तो मैं वही बोल रहा था कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है क्या, लोग आते हैं। तो चूंकि हम लोग मेन स्ट्रीम में इतना हो गए हैं, जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो जब हम लोग 12th में थे तो हम लोग ये सोचते थे कि साइंस वाला ही आदमी है, जो मैथ साइंस नहीं लिया मतलब वो इनकम्पिटेंट। आर्ट्स वाले को तो पूछना ही नहीं चाहिए वो क्लास से तुम क्यों आगे इधर। ठीक है, तो आयुर्वेदा हर एक सब्जेक्ट की एक इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, नो सब्जेक्ट इज सुपीरियर और इंफीरियर। हर एक की एक शैक्षणिक पद्धति होती है, उसके बिहाइंड एक साइंस होता है। सिमिलर वे में एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, आपके जितने भी स्ट्रीम्स ऑफ मेडिकल साइंसेस हैं ये काफी पुराने हैं। पर एक प्रॉब्लम ये है कि कोई भी आदमी आपका रेलेवेंस तब समझेगा जब उसका आपके प्रति एक्सपोजर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नोबेल पीस प्राइज विनर या कोई नोबेल लॉरेट हमारे बीच में आके बैठेंगे और यहाँ पे लोग शायद उनको वैल्यू ना दें, तो वो तो सीरियस आपको ही देंगे क्योंकि उनके साथ एक गनर एक अंजलि दिखता है। ठीक है, बट इन अ पर्सन वो नोबेल लॉरेट। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने सब्जेक्ट का रेलेवेंस बनाए रखना है। यू कैन नॉट टेक कोई मेडिकल साइंस, जैसे हम लोग एमबीबीएस वाले को नहीं समझते कि नीट का लड़का है, मतलब नहीं क्या पढ़ के आ रहा होगा 22 घंटे। तो आपको भी अपना रेलेवेंस बता मतलब वो रहना चाहिए और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। बाकी मैंने काफी अच्छा सुना आप लोगों को। मुझे लगता है कि आपके प्रोफेसर्स बहुत अच्छा गाइड करते हैं, आपका इंटरेस्ट इसमें जगाएंगे। कुछ लोगों के पेरेंट्स भी आए होंगे यहाँ पे, अच्छी चीज है। और अपने मैं जो पेरेंट्स उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को इस टाइप का एक्सपोजर अवश्य दें। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट टू यू। जो बाकी के भी लोग होंगे, हमारी ज्यूरी अच्छी है, काफी बहुत वेल नॉलेजेबल पीपल हैं यहाँ पे। हमारे जो क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी हैं, मतलब मेरे ख्याल 20-25 साल का एक्सपीरियंस होगा आपका, मतलब मोर देन दैट इस फील्ड में। तो बहुत अच्छे लोग हैं, इनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। अमन कुमार विश्वकर्मा। मेरे महोदय अतिथि महोदय, मेरे भाइयों और बहनों का अभिवादन करता हूँ। मैं आज अपने विषय हर घर हर दिन आयुर्वेद पर कुछ अपनी बातें रखने जा रहा हूँ। उसमें जो भी त्रुटि हो उसे क्षमा करने की महान कृपा करें। आयुर्वेद संस्कृत के शब्द आयु तथा वेद से बना है। आयु अर्थात जीवन और वेद अर्थात विज्ञान। इसके नाम से ही पता चलता है करता है। आयुर्वेद योग और व्यायाम करने से हमारी शारीरिक और हम अपने शारीरिक शक्तियों और अपनी मन की शक्तियों को एक में जोड़ सकते हैं और अपनी इच्छित उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद और योग करने से शारीरिक और मन की शक्तियों में समन्वय बना रहता है और इसी समन्वय बनाने पे हमारे बहुत से लोगों ने बहुत से विचार अपने व्यक्त किए। जैसे आयुर्वेद क्या है? आयु का मतलब जीवन और वेद का मतलब ज्ञान, यानी जीवन जीने का ज्ञान आयुर्वेद कहलाता है। इसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं, जैसे योग और ध्यान। इन सभी के मिलन से हम आयुर्वेद को एक अच्छा रूप दे सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ एवं निरोगी रख सकते हैं हमेशा के लिए। और मैं अंत में अपनी 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। अपने दैनिक जीवन को सुखी बनाएं, अपने दैनिक जीवन को सुखी बनाएं। हर दिन हर घर आयुर्वेद अपनाएं, हर दिन हर घर आयुर्वेद अपनाएं। धन्यवाद। इस्तेमाल होती है जिसे हल्दी कहते हैं। लोग हल्दी को खाली एक ही तरह से जानते हैं कि वो एक तरह से पीड़ानाशक है, कहीं चोट लग जाती है तो उसका उपयोग पीड़ानाशक के रूप में करते हैं। परंतु उसका एक और उपयोग है, वो एक तरह की एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है जिससे आपको इन्फेक्शन नहीं होता है। और काफी सारे जैसी तुलसी हो गई, तुलसी का उपयोग हम करते हैं दैनिक जीवन में अपने, और पुदीने की चाय हो गई और इत्यादि काफी सारे हर्ब जैसे हमारे हो गए, अश्वगंधा हो गए, इस तरह की हो गई। और साथ ही साथ हमारे घर में जैसे दाल हो गई, हम दाल का उपयोग करते हैं, वो भी एक प्रकार का हमारे प्रोटीन में आता है, उसको हम यूज करते हैं। गाय का दूध वो भी एक तरह से है। और हम देख रहे हैं कि अभी के समय में हमारे वैश्विक स्तर पर जो है इसका आयुर्वेद का विकास काफी तेजी से बढ़ा है। जब से कोरोना काल आया है लोगों ने इसकी उपयोगिता समझी है
लोगों के अंदर, जो कि पहले हमारे भारत में ही इसका जन्म हुआ है आयुर्वेद का, परंतु अब वैश्विक स्तर पर इसका विकास हो रहा है। हमारे भारत में विकसित यह पद्धति न अपितु भारत का बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का विकास का कार्य कर रही है। कॉलेज का विद्यार्थी सभा को प्रणाम करता हूं। बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हम इस पावन प्रयागराज की पवित्र भूमि पर जो आयुर्वेद है वह प्राचीन भारतीय पद्धति है। यह पूर्ण प्राकृतिक और पुरातन भारतीय संस्कृति है। इसका मुख्य उद्देश्य रोगी को रोग से दूर करना तथा स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना, रोगी को रोग से दूर करना और व्यक्ति को स्वस्थ रखना। अगली प्रतिभागी आयुर्वेदा हमारे दैनिक जीवन की आयुर्वेदा में उपयोगिता। जैसा कि हम जानते हैं हम सुबह उठते ही ब्रश और मंजन करते हैं। तो अब का तो ये टाइम आ गया है कि मंजन करने के लिए हमें ब्रश और पेस्ट चाहिए होता है, लेकिन पुराने समय में कहा जाता था कि अगर हम अपने ब्रश को दातुन से क्लीन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है हमारे लिए। लेकिन आज के सभी समाजवासी सोचते हैं कि जो अंग्रेजी दवा खाना है उससे वो ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे लिए। लेकिन जो विदेशी सभ्यताएं हैं जो हम भारतवासी अपना रहे हैं, और वो तो हम अपना रहे हैं, लेकिन जो देसी सभ्यता है ये यहाँ पे विदेश सभ्यता अपना रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दातून कितना इफेक्टिव है हमारे लिए। और फिर उसके बाद हम नहा रहे हैं, अगर हम गर्म पानी से नहा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स करता है और सारी थकान दूर करता है, और ये भी आयुर्वेद है। फिर उसके बाद हम पूजा करने जा रहे हैं। पूजा करने में भी हम धूप बत्ती अगरबत्ती का यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे घर का वातावरण को एकदम प्योर करता है और नेगेटिविटी बाहर करता है, जिससे कि हमारे घर में सारी पॉजिटिविटी एनर्जी आए। और धूप बत्ती अगरबत्ती ये भी आयुर्वेद से ही आया है। फिर उसके बाद हम किचन में जाते हैं। किचन में सरसों का तेल, हल्दी और अजवाइन, मरीच, ये सब जो है सब कुछ आयुर्वेद के लिए है। सरसों का तेल जिसे हम अपने बालों में लगाते हैं, और वो भी आयुर्वेद है। हम अपने बालों में लगा रहे हैं क्योंकि उससे हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो, और मतलब उससे बॉडी पे भी मसाज किया जाता है। और फिर उसके बाद किचन के बाद, और आयुर्वेद के लिए कहीं भी हमें किसी हॉस्पिटल, क्लिनिक या मेडिकल स्टोर जाने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही हमारे किचन में ही है। किचन में हल्दी, सेंधा नमक, अजवाइन, मरीच, ये सब कुछ आयुर्वेद के ऑलमोस्ट प्रोडक्ट सब हमारे किचन में अवेलेबल हैं। और अभी आप जानते हैं कितनी बड़ी बीमारी आई कोरोना में, और कोरोना में भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हम लोग उस वक्त कपड़े में एक लौंग और कपूर बांध के हर तरफ अपने पास लेके जाते थे, ताकि वो हमें हमारा ऑक्सीजन लेवल उससे ठीक रहे और मतलब ठीक रहे, और हमें सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसी से मैं अपने वीणा का यहाँ विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर अनवेवरिंग अटेंशन। सबसे पहले स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज के इस ऑडिटोरियम में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयुर्वेद के अमृतकाल की श्रृंखला में हर घर हर दिन आयुर्वेद के अंतर्गत आज की ये भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम बेस्ट की तरफ उससे इंप्रेस हुए बगैर अपने दैनिक जीवन में आयुर्वेद के सिद्धांतों को अमल में लाएं
और अपने दैनिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा हर्ब्स और हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल करें, योगा और व्यायाम करें, खान पान में जंक फूड का इस्तेमाल ना करें, ताकि हम एक लंबी, अच्छी और सेहतमंद जिंदगी बसर कर सकें। आज पूरी दुनिया आयुर्वेद और आयुष की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। कोविड काल में आयुर्वेद और आयुष की विधाएं जिसमें आयुर्वेद के साथ यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, योगा सब सम्मिलित है, सब ने मिलकर कोविड काल में एक अभूतपूर्व कार्य किया है, जिसको पूरी दुनिया आज सलाम कर रही है। तो इसलिए इसकी महत्ता साबित है। आज जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन सारे बच्चों का रहा। और आज के इस प्रोग्राम की खास बात यह रही कि आज कोई भी बच्चा हारा नहीं है, सभी बच्चे जीते हैं, क्योंकि इस स्टेज पर उनका आकर प्रेजेंटेशन करना ही अपने आप में जीत है। ये अलग बात है कि प्राइज कुछ ही बच्चों को मिलेगा, लेकिन जिन बच्चों को प्राइज नहीं मिलेगा उन्हें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, यह भी उनकी पहली सीढ़ी है, आगे वो और कामयाब होंगे। एक बार फिर मैं अपने तमाम अतिथिगण और सभागार में मौजूद तमाम श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ, खासतौर से डीओ साहब का, उनकी पूरी टीम का, कि उन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया। थैंक यू सर। अब मैं डॉक्टर तोमर सर को अनुरोध करना चाहूंगी, सर कुछ आशीर्वचन बच्चों को दें। अब मैं अधिक समय न देते हुए, तो हमारे मुख्य अतिथि महोदय को बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में यहाँ से जाना है, तो मैं अधिक समय न देते हुए मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप अपने आशीर्वाद से हमारे बच्चों को अभिषेक करने का कष्ट करें, और साथ साथ में शायद प्रतियोगिता का पुरस्कार भी सर्टिफिकेट तैयार हो रहे हैं, तो बच्चों को पुरस्कार दिलवाया जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि आप या तो अपने स्थान से या से आप सभा को संबोधित करने का कष्ट करें, और मुझे आशा है कि आपके आशीर्वाद से भविष्य में भी हमारे विद्यार्थियों के अंदर उत्साह बढ़ेगा, और आगे आने वाले समय में ये भारत के भविष्य के रूप में उभरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे आमंत्रण को एट द 11th आवर आपने स्वीकार किया। थैंक यू वेरी मच सर। प्रोफेसर किसी त्रिपाठी सर। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच उपस्थित हमारी मध्य निष्ठा और योगदान की अप्रतिम छवि रखने वाले प्रोफेसर जी.एस. तोमर जी, प्रोफेसर अशोक कुमार कुशवाहा जी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रोफेसर नजीब अंजला जी, जो इस महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित प्रतियोगी छात्राओं, छात्रों, बंधुओं और बहनों, सबसे पहले मैं शुरुआत में तोमर साहब को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में आपके साथ सहभागी होने का अवसर दिया है। हमारे सामने जो इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र और युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बैठे हैं, वे ही भावी भारत हैं। 20 साल बाद, 25 साल बाद जिस भारत का निर्माण होगा,
हम लोग उसकी चर्चा कर सकते हैं और उसके निर्माता वे ही हैं। हमारे पूर्वजों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया और उस प्रयोगशाला में उन्होंने इस सृष्टि के सत्य और रहस्य को समझने की चेष्टा की। They devoted whole of their lives to realize the truth and mystery behind this creation, and ultimately they succeeded. वो सफल हुए और उन्होंने इस सृष्टि के सत्य और रहस्य को समझा, और फिर उस सत्य और रहस्य को समझने के बाद जो दर्शन, दृष्टि और विचार विकसित हुआ, वही जीवन के हर क्षेत्र में अनुष्ठान बना, पृष्ठभूमि बना, चाहे वह सामाजिक रचना हो, आर्थिक रचना हो, राजनीतिक स्वरूप हो, सांस्कृतिक स्वरूप हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसके मूल में वही दर्शन, दृष्टि और विचार है। यह संपूर्ण सृष्टि हमारे परमात्मा का विग्रह है। दिस क्रिएशन इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑलमाइटी। और इसलिए भारत का दर्शन कहता है वसुधैव कुटुंबकम। यह संपूर्ण वसुधा हमारा परिवार है, अर्थात परिवार हमारे जीवन के विचार का आधार बना। और जब हम कहते हैं संपूर्ण वसुधा हमारा परिवार है, अर्थात भारत कुटुंबकम नहीं कहा उन्होंने, वसुधैव कुटुंबकम। और जब वसुधा कहते हैं तो उसमें केवल मनुष्य नहीं है, केवल प्राणी नहीं है, उसमें पेड़ पौधे भी हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये भी हमारे जीवन का हिस्सा है। और इन सब के सहयोग से मिलकर यह सृष्टि आगे बढ़ती है। तो हम तो ये कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है और सृष्टि के नियम भी बनाए, और जब वह सृष्टि और सृष्टि के नियमों की रक्षा करने में असमर्थ होती है तो वह परमात्मा अपनी सृष्टि और सृष्टि के नियमों की रक्षा के लिए इस धराधाम पर प्रकट होता है। आज जिस विषय पर आप लोगों ने चर्चा की वह विषय बहुत महत्व का है, क्योंकि हमारे जीवन में शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा, इन दोनों का जो महत्व है उसके आधार पर ही हम दूसरी चीजों का महत्व समझ सकते हैं। क्योंकि हमारा अगर शरीर ठीक हो, हमारा मन और बुद्धि ठीक हो, तभी हम दूसरी चीजों को समझ सकेंगे। तो अगर शिक्षा ठीक है, चिकित्सा ठीक है, तभी हमको सृष्टि के अन्य कंपोनेंट्स और उन कंपोनेंट्स के साथ अपने व्यवहार को नियत करने में सुविधा होगी। आज सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि आयुर्वेद जो था वह केवल शरीर की चिकित्सा नहीं करता था, वह केवल औषधियों के आधार पर मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं करता था। उसमें आहार और विहार भी था, उसमें हमारी सोच भी थी, और इसलिए हर घर में आयुर्वेद रहता था। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभा। हमारे कहा गया कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र की क्षमता न हो, और ऐसी वनस्पति की कोई विधा नहीं है, माने उसका कोई अंश नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हो। बस केवल समझदारी की बात है कि हम प्रत्येक वनस्पति के टुकड़े के औषधीय गुण को समझकर उसके उपयोग के बारे में अपनी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित कर सके। इसलिए मैं नोडल अधिकारी को भी मैंने बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे विषय पर प्रयाग में शुरुआत की, क्योंकि मैं मानता हूं कि संकल्प ठीक हो हमारा। पहला विचार क्या है कि मतलब 5 चीजें हैं जो सफल बनाती हैं। पहला तो कॉन्सेप्ट ठीक हो, और अगर हमारा विचार ठीक है तो ये पहली शर्त है कि हम सफल होंगे या नहीं सफल होंगे। और दूसरा है अधिष्ठानम तथा कर्ता। पहले तो विचार है, फिर उस विचार को बढ़ाने वाला डूवर जो है, कर्ता जो है, वह इंपॉर्टेंट है। विचार तो बहुत अच्छा है, पर उस विचार को करने वाले लोग हम खड़े नहीं कर पा रहे, तो वह विचार सफल नहीं होगा। तो पहला है विचार ठीक हो, दूसरा है उस विचार को क्रियान्वित करने वाले लोग खड़े हो। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधा। विचार भी ठीक है, करने वाले लोग भी हिम्मत के साथ खड़े हैं, पर उन्हें करण अर्थात विधाओं का ज्ञान नहीं है कि किस स्थान पर, किस समय में, किस विधा से उस विचार को आगे बढ़ाया जाए, यह भी होना चाहिए। तो विचार है, कर्ता है, और उस कर्ता के अंदर क्रिया विधि होना, अर्थात जो विधाएं हैं, जो मेथोडोलॉजी है, वो भी उसे आनी चाहिए। तो अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधा। विविध प्रकार की जो विधाएं हैं, जो मेथोडोलॉजी है, उसका ज्ञान भी कर्ता को होना चाहिए। विविधार्थ पृथक चेष्टा, और फिर होना चाहिए विल पावर हमारी।
जो इनके आधार पर ही बनती, जहां से हमने शुरुआत की, विल पावर बनती है शिक्षा के आधार पर, चिकित्सा शिक्षा के आधार पर। तो हमने विचार को ठीक किया, कर्ता खड़े किए, उन कर्ताओं में मेथोडोलॉजी का निर्माण किया, उनमें चेष्टा बल का निर्माण किया, और फिर कहते हैं दैवम चैवात्र पंचमम। 4 चीजें तो हो गई, फिर कहते हैं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये परमात्मा तय करेगा, डेस्टिनी तय करेगी। पर मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी होने के नाते कहता हूं कि हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा और पढ़ाया बहुत दिनों तक, उसमें कहते थे कि इफ देयर आर n वेरिएबल्स एंड n-1 आर इन इक्विलिब्रियम then rest one is bound to be there in equilibrium। इसमें भी 5 चीजें आई, विचार आया, कर्ता आया, करण विधि आई, चेष्टा बल आया, और 5वां आया डेस्टिनी। तो अगर 4 चीजें हमने ठीक कर ली, विचार हमारा ठीक है, हमने कर्ता खड़े कर लिए, उनमें मेथोडोलॉजी का निर्माण कर लिया, उनमें चेष्टा बल का निर्माण कर लिया, तो रेस्ट 1 जो है डेस्टिनी इज बाउंड टू बी देयर इन इक्विलिब्रियम, वो हमारे साथ रहेगा, भाग्य हमारे साथ अपने आप खड़ा होगा। ये हमारे शास्त्रों का विधान है। तो आज जिस विचार के साथ हम खड़े हैं, आज जरूरत भारत को ही केवल आयुर्वेद की नहीं है, पूरे विश्व को आयुर्वेद की आवश्यकता। और हमारे पूर्वजों ने जो कुछ किया उसे केवल भारत के लिए सुरक्षित नहीं किया, वो मानते थे कि संपूर्ण सृष्टि हमारा परिवार है। इसलिए आयुर्वेद जो है उसकी आवश्यकता हम सब लोगों को इसलिए है क्योंकि वह इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ को लीड करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। तो भारत को आवश्यकता है, पूरे विश्व को आवश्यकता है। इसलिए आज स्वतंत्रता के इस महोत्सव पर हम आयुर्वेद के क्षेत्र में, न माने चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी कोई बराबरी नहीं थी किसी से, परंतु शताब्दियों तक हम पराधीन जब रहे, तो हम केवल राजनीतिक दृष्टि से पराधीन नहीं हुई, हम जीवन के अनेक क्षेत्रों में दूर दूर तक पिछड़ते चले गए। उस पराधीनता के कालखंड में भी हमारे पूर्वजों ने भारत के दर्शन, दृष्टि और विचार के बीज बचाने के लिए अपने प्राण दिए, और यह सैकड़ों वर्ष तक संघर्ष चला। आयुर्वेद को भी बचाने के लिए हमारे पूर्वज महनीय योगदान और त्याग बलिदान किए हैं, इसलिए आयुर्वेद आज जीवित है। और आजाद तो 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हो गए, परंतु विविध क्षेत्रों में आजादी जो हमारी थी, जिनमें हम पूरे विश्व का नेतृत्व करके विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित थे। अगर भारत ने केवल भारत के बारे में सोचा होता तो विश्व गुरु नहीं होता। हमारी सोच ही वैश्विक थी, हम सबको एक साथ मिलकर के उनके बारे में विचार करते थे, इसलिए हमारी सोच वैश्विक थी, हमारी विधा वैश्विक थी, इसलिए हमारी विश्व गुरु की उपस्थिति भी काल्पनिक नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद जरूर हुए, लेकिन जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारी आजादी थी, वह आजादी का क्रम अब इस आने वाली पीढ़ी को आगे प्रशस्त करना है। और इसी दृष्टि से मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी हमको अपनी प्रतिष्ठा न केवल भारत बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करनी है, और उसमें हमारे युवा सफल हो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और जो जीते हैं उनको बधाई, और जो इसमें सहभागी हुए उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जीवन में हार और जीत केवल शब्द मात्र हैं। जिन्होंने पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से इसमें सहभागिता की, उनको जो जीते उनको बधाई देनी चाहिए, और यह देखना चाहिए कि कहां हमसे कमी रह गई, ताकि अगली बार यहां वे फिर से पुरस्कृत किए जाएं, या जीवन के जिस क्षेत्र में वे आगे बढ़ रहे हैं उस क्षेत्र में पुरस्कार के भागी बने। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हमारी ये स्पोर्ट की फीलिंग होनी चाहिए कि जो जीते वे बधाई के पात्र हैं, परंतु जो नहीं जीते वे और बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में उनके अंदर अगर चेष्टा बल हमने निर्माण किया तभी देश आगे बढ़ेगा और हम इस देश पर गर्व कर सकेंगे। इसलिए एक बार फिर विजयी लोगों को, और जो विजयी नहीं हो सके इसमें पार्टिसिपेट किए, उनको भी हृदय से बधाई और ईश्वर से प्रार्थना कि वे अपने इस अभियान में सफल हों, जिससे उनकी सफलता ही भारत की सफलता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, और मैं फिर तोमर साहब को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उन्होंने आज मुझे यहाँ आपके साथ सहभागी होने का अवसर प्रदान किया। थैंक यू सर। अब हम सबको यह विदित होने लगा है कि हमारा यह आयोजन और आप सबका यहाँ आना निश्चित रूप से सफल है। इतनी अच्छे ज्ञान की बातें, इतने अच्छे विचार, इतने उत्साहवर्धन और भविष्य की शुभकामनाओं के साथ चीज़ें जो आपके सामने आज मिल रही हैं, यह बहुत ही दुर्लभ है।
और आपके सामने जो सिनेरियो खुलकर आने वाला है वह बहुत ही सरप्राइज करने वाला है। इस बीच हमारे निर्णायक मंडल की सदस्य एसडीएम महोदय यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि दो बातें, दो शब्द, अच्छे विचार हम बच्चों के बीच आशीर्वचन के रूप में अवश्य रखें। धन्यवाद संचालक महोदय, और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और उत्साहवर्धन है उनका कि उन्होंने पूरे उत्साह के साथ फिर से इसलिए कह रहे हैं, आपको पता है, फिर से पार्टिसिपेट किया और कहीं भी ऐसा लगने नहीं दिया कि कोई बोरियत है या उन्हें कोई बोझ महसूस हो रहा है। तो उस उत्साह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सारे टीचर्स को धन्यवाद जो इतने कम टाइम में स्टूडेंट्स को तैयार करा कर यहाँ तक ले आए और उनको एक मौका मिला यहाँ पे बोलने का। और आशा है ये कहते हैं ना कि जो कुछ लोग जीतते हैं और कुछ लोग हार जाते हैं, लेकिन वो दिल जीत लेते हैं। तो जो जीते हैं उनको बधाई, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बोलकर दिल जीत लिया है, उनको भी बधाई। आप लोग यहाँ तक आए और मंच पे खड़े होकर बोलने का प्रयास किया। आज बच्चों को मैंने देखा कि वो बोल नहीं पा रहे थे, भूल जा रहे थे कि हमने क्या याद करके आए थे, क्या बोलना है, लेकिन वो अपने पूरे टाइम तक बोलने का प्रयास करते रहे। उस प्रयास के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, अभी ये शुरुआत है, मैंने उस दिन भी कहा था, अभी आपको बहुत आगे जाना है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, जीवन के हर क्षेत्र में उत्साह पूर्वक प्रतिभाग करते रहिए। जीत हार तो चलती रहती है, उसका कोई मायने नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छी बातें, और बच्चों ने वाकई बहुत धैर्य का परिचय दिया है और बहुत ही उम्दा प्रयास किया है बच्चों ने। अब मैं निर्णायक मंडल के सदस्य प्रोफेसर जीएस तोमर सर से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रयास के लिए, जिस उत्साह से बच्चों ने यहाँ भाग लिया और जिसके लिए वो बैठे हैं, वह शुभ घड़ी आ गई है। और खुद स्वयं सर से अनुरोध करूंगा कि आप स्वयं जो है रिजल्ट का डिक्लेरेशन करें, रिजल्ट बच्चों के सामने रखें। प्रोफेसर जीएस तोमर सर। सामने बताया गया कि पहला सांत्वना पुरस्कार जो है, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करिए लक्ष्मी मिश्रा। बहुत अच्छा, संस्कृत में बोला था। अब दूसरा जो है सांत्वना पुरस्कार जाता है हर्षिता श्रीवास्तव। हर्षिता श्रीवास्तव, दूसरा सांत्वना पुरस्कार हर्षिता श्रीवास्तव। तृतीय पुरस्कार जाता है यशी अग्रहरी। यशी अग्रहरी के लिए जोरदार तालियां। तीसरे पुरस्कार के लिए यशी अग्रहरी। यशी अग्रहरी, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया आपने बोला है, बहुत बधाई के पात्र हैं आप। यशी अग्रहरी। सेकंड प्राइज गोज टू खंसा निहाल अहमद। खंसा निहाल अहमद, सेकंड प्राइज के लिए खंसा निहाल अहमद, जोरदार तालियां और स्वागत करिए खंसा निहाल अहमद। आइए खंसा निहाल अहमद। आप लोग ताली बजाते रहें। बड़ी खुशी की बात हो रही है कि आज बच्चियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, और इतना ज्यादा कि कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कह सकते हैं कि 5-0 लास्ट बट नॉट लीस्ट। नहीं, 5-0 नहीं, शुरुआत यही होती है। नॉट लीस्ट फर्स्ट प्राइज गोज टू आयुषी सिन्हा। आयुषी सिन्हा फर्स्ट प्राइज। आयुषी सिन्हा ने पहली बार भी फर्स्ट प्राइज लिया था और इस बार भी फर्स्ट प्राइज। आयुषी सिन्हा के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही बढ़िया रिप्रेजेंटेशन, 5 पॉइंट जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया वो बहुत ही अच्छा था। इस तरह हम बिल्कुल कहेंगे नारी शक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां नारी शक्ति के लिए।
सारी बच्चियों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। वाकई भारत माता ऐसे भारत माता नहीं है। आप लोगों को ये मानना पड़ेगा कि वसुधैव कुटुंबकम की बात यहाँ साबित हो रही है और सारी बच्चियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हाँ बच्चों आप लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए एक क्रम में। अभी सर्टिफिकेट लेकर आप लोग जाएंगे नहीं, सिग्नेचर वाट करा ली जाएंगे। अब मैं अपने नोडल अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि बच्चों का धन्यवाद ज्ञापन करें और बच्चों के गार्जियन बच्चे सभी लोग रुके रहेंगे। ग्रुपिंग होने के बाद ही जाएंगे। सारे पार्टिसिपेंट्स भी रुके रहेंगे। धन्यवाद ज्ञापन के साथ साथ सभी